अगर मेरी बात आवाज कम पहुंच रही I use it like this. Today, on a lighter note, when friends came to request me to come here, first of all, I readily accepted. The reason being, of late, I have been working on Baba Sahib, trying to meet my own inadequacies. And secondly, it was Goya Hall. Goya Hall is the hall which told me there is an ice cream called Shasaka. I had come from Bihar. I was not a resident here. Today, a term which is very disparaged, outsider. So I was an outsider in Goya Hall way back in 1991. And for the first time in my life, I had Kasata ice cream here. And that is how my introduction to Goya Hall began, and which continued in very many ways. You know something? Today, while thinking about Baba Sahib, there are many ways I can speak on him or share my views. But most importantly, I try saying two things. First of all, one teacher's influence was shared by him. I would say two important people influenced Baba Sahib a lot. One was Edmund Burke, second was John Dewey. Of late, I decided to read John Dewey. Many of the ideas which you find in Ambedkar associated conjoint experience as democracy, associated conjoint communicated experience. This is what Dewey and Ambedkar, they jointly brought forward. It is sheer unfortunate that today, and nobody can be spared on this, because we have reduced Baba Sahib to a day of celebration. I say this with conviction, knowing fully well that I also represent a political party. But political parties have done more harm to the image and to the message of Baba Sahib. He had huge difference with the way democracy was envisaged. Three important things which I would like to share. First, he believed constitutional morality is supreme. And when I say constitutional morality, he believed modern democracies can only function if there is respect, reverence for constitutional morality, and that translates in itself in rule of law, which is for everyone. He even in fact went to the extent of saying Satyagraha is undesirable. Even violent revolution to that matter. Second, what he said is much more fundamental for us in recent times. You know what I find very amazing about Hindu religion, Hindu caste system, ये हमें मूर्तियां बनाने का उस्ताद बना देता है। हम मूर्तियां करने में माहिर हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी मूर्तियों की कभी वकालत नहीं की, हमने उनको भी मूर्तियों में तब्दील कर दिया। और जब मूर्तियां बनाते हैं तो हम विसर्जन की विधि भी तय कर लेते हैं। तो ये जो मूर्ति गढ़ना और विसर्जन करना, ये इस मुल्क की नियति सा बन गया है। He warned people against hero worship, including his own worship. What he warned, we saw in the 1970s. Under the spell of hero worship, you had a dictator. And the day is not far enough, far away, when you will have the repeat of the same hero worship in recent times. Maybe it is in the offing. It was the second one. The third warning was that never ever leave the importance of education. And that is why you would find most of the posters depicting Baba Sahib is educate, agitate. Now education is in that context not simply what we call conducting examination and distribution of degrees, जो कि आजकल विश्वविद्यालयों का मूल धर्म हो गया है। आज जब मैं आपके सामने यहाँ
अपनी बात रखने की चेष्टा कर रहा हूँ तो आज ही का दिन है। शायद जैसे मीडिया की रिपोर्ट आ रही है कि रोहित वेमुला की फैमिली, उनकी माँ और भाइयों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कई लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुझे संभवतः याद है 1935-36 में अम्बेडकर ने जो हिंदू कट्टरपंथी थे उनसे कहा कि मैं आखिरी बार आप लोगों से दरखास्त कर, और संभवतः इसके बाद मैं नहीं होऊंगा आपके बीच, आपकी तरह का व्यक्ति होकर के आपसे बात करूंगा। ये आपके हक में है कि आप बेहतर हो, ये आपके हक में है कि आप जाति को त्याग दें, ये आपके हक में है कि आप मानव का जो मूल गुण है उसके आधार पर उसकी गणना करें और आगे बढ़े। और हम सब जानते हैं 1954 में अम्बेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण करना एक इमेंसिपेटरी एक्सपीरियंस था। जब किसी भी कौम के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जब आप तमाम दरवाजे बंद देखते हैं तो आप क्या चाहेंगे। और यहां भी मैं कह रहा हूं, यहां भी उन्होंने डिडी के साथ मिलकर एक शब्द जो कि विज्ञान से लाया था, सोशल एंडोमोसिस, सोशल एंडोस्मोसिस, जिसका और उनका मानना था कि हिंदुस्तान में यह संभव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा व्यवधान है वो है जातिगत संरचना। कमाल की संरचना है, ऊपर जाओ तो आदर बढ़ता जाए, नीचे जाओ तो घृणा बढ़ती जाती है। तो जहां आदर और घृणा, जिसको कहते हैं असेंडिंग स्केल ऑफ रेफरेंस एंड डिसेंडिंग स्केल ऑफ कंटेम्प्ट, वो अगर आपके वजूद का, पहचान का हिस्सा हो और आप इतनी दूर तक आपका हिस्सा हो कि आपको एहसास भी नहीं हो कि आपका हिस्सा है। ये बैंड मैंने पहना है, मुझे एहसास है ये मेरे वजूद का हिस्सा है। कई दोस्तों से, खास करके यहाँ कुछ शिक्षण संस्थानों में बातचीत होती है, एक कॉमन सा रिफ्रेन होता है, वी डोंट बिलीव इन कास्ट, हम जाति को नहीं मानते। आप सचमुच जाति को नहीं मानते क्योंकि आप उसमें जीते हैं, और जिस चीज में आप जीते हैं उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। मैं एक चीज जो मैंने अपने साथ शुरू की, 8 महीने पहले मैंने पैटी मैकिन्टॉश का ब्लैक इतिहास के संदर्भ में एक किताब पढ़ी, उनकी प्रस्तावना, जिसको कहते हैं व्हाइट प्रिविलेज। व्हाइट प्रिविलेज कहता है कि एक बार बैठ के सोचिए कि आप जिस परिवार, जिस पृष्ठभूमि से आए हैं उसमें कोई कौन सी ऐसी चीजें आपको ऐसी मिलती गई हैं जिसको आप नेचुरल मानते हैं, जो मूलतः नेचुरल नहीं है। मैं आपको अपना उदाहरण, बिहार के एक परिवार में जन्म होता है, माता पिता दोनों विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। मैंने बचपन में अपने घर में किताबें ज्यादा देखी, खिलौने कम देखे। शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, जितने चंद्र हैं, विमल मित्र, सब मैंने 6ठी 7वीं कक्षा तक पढ़ी। और आप मुझको मेरे समकक्ष रेस में एक ऐसे व्यक्ति को लाते हो तो फर्स्ट जनरेशन लड़का है और कहते हो कि इक्वालिटी, समता है। अम्बेडकर ने बहुत कास्टिगेटिंग टर्म से ये भी कहा कि वी डोंट नीड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी नीड अपॉर्चुनिटीज फॉर इक्वालिटी। ये दूसरा ऐसा पहलू है और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत एसिडिक हो जाते हैं, बहुत नजदीक के दायरों में जाति आरक्षण पर बात करते हैं। अभी हाल में साईनाथ हमारे डिपार्टमेंट आए, उनसे किसी ने सवाल किया आरक्षण के, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण मूलतः दिल में छेद के लिए बैंडेड का इस्तेमाल है, और मैं समझता हूं कि वो फिर भी ज्यादा था। हम बिहार के लोग जिस दौर में आए थे, बोरोलिन एक ट्यूब हुआ करता था, तो बिहार में बोरोलिन हर मर्ज की दवा थी। मतलब अगर होठ फट रहा हो तो बोरोलिन लगाइए, बीमारी हो गई तो बोरोलिन लगाइए, बिनाई हो गया बोरोलिन लगाइए, खुजली हो गया बोरोलिन लगाइए। तो ये बोरोलिन खत्म ही हो गई। हाँ, तो ये मैं एक चाह रहा था कि आप सबके माध्यम से मैं एक चीज रखना चाहता था। मैं 5-7 मिनट और लूंगा, मैं जानता हूँ बहुत सारे। एक अनुभव मैं अम्बेडकर का आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, सब लोग शायद वाकिफ हो। साधारण में जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे, हमारे तो हम सब जानते हैं कि बहुत ही तेज छात्र थे, तो वहां ब्लैक बोर्ड के पीछे जो उच्च जाति के लोग थे, वो ब्लैक बोर्ड के पीछे अपना टिफिन बॉक्स रखते थे। तो हुआ यूं कि
एक दिन मैथमेटिक्स के टीचर ने कहा कि आओ और इस सवाल को हल करो। अंबेडकर जब तक पहुंचते वो तमाम जो उच्च जाति के लोग थे भागते हुए बच्चे आए और टिफिन का डब्बा अपना अपना निकाल के, ताकि अंबेडकर की मौजूदगी से, जो कि ब्लैक बोर्ड के इधर है, तो ब्लैक बोर्ड के उधर का उनका फूड पॉल्यूट ना हो जाए। धनंजय कीर को जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि उस टिफिन के कड़कड़ाने की आवाज कई वर्षों तक मेरे कहने में आई। और मैं ये कहता हूं कि बेईमानी नहीं है, क्योंकि हम जिन लोगों ने उस दर्द को नहीं भोगा नहीं समझेंगे कि वो टिफिन के करकराने की आवाज, उसकी चटक संभवतः रोहित वेमुला तक भी आई, क्योंकि ये एक निरंतर कहानी है। और हमारी दिक्कत क्या होती है ना कि इस पूरी कहानी को हम एक बहुत ही लिमिटेड नजरिए से देखने की चेष्टा करते हैं। अक्सर एक और चीज कह के खत्म करूंगा। एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे एंटोनियो ग्रैम्शी, कम उम्र में उनका देहांत हो गया। जेल में थे, मुसोलिनी ने जेल में रखा और सिगरेट बहुत पीते थे। तो सिगरेट के पैकेट में जो कागज आता है उस पर उन्होंने चीजें लिखी जिसको हम कहते हैं प्रिजन नोटबुक्स नाम से, वो बहुत पब्लिश हुआ। तो बालगुरु ने भी काम किया और मूलतः अभी हाल के दिनों में हमने दो नजरिए से काम किया। ग्रैम्शी का ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का आइडिया और ग्रैम्शी का हेजिमनी, जो लगातार अंबेडकर ये बात कहते रहे। मैं आज कह रहा था अगस्त 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश होता है संविधान सभा में। तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि संविधान का चरित्र क्या होना चाहिए, संविधान का आकार क्या होना चाहिए, संविधान की प्रस्तावनाएं क्या होनी चाहिए। और एक व्यक्ति लगातार उन सवालों का हल ढूंढता रहा। जो एक हेजिमनी है, जो जातिगत हेजिमनी है, वो इतनी गहरी है कि उसके होने का आपको पता नहीं चलता। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जात से निकल गए। अभी भी कई लोग कहेंगे कि गरीबी की तो कोई जाति नहीं होती है, तो आरक्षण गरीबी के आधार पर क्यों ना हो? पहली चीज, आरक्षण इनकम जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। दूसरा, ये एसेट बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है। तीसरा, ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है। इसका मूल चरित्र प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंटेशन के अपने आइडिया को आरक्षण पा चुका है? अगर पा गया है तो बस बिल्कुल आप इस पर पुनः संवाद करिए, और अगर नहीं हुआ है तो फिर दायरा बढ़ाने की भी बात कीजिए, इसको फिर से रिविजिट करने की बात कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को लेकर के भी अक्सर मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कि जो यहाँ एक जगह लिखा हुआ Dead Ambedkar is more dangerous than alive, and that's very true. Because a life is measured in terms of how the credibility was built over the years. While I see almost all the historical character either getting stagnated or getting devalued, in case of Ambedkar, it's almost every day there's a fresh sensex development. And that is the beauty of that life, because what you find that what he spoke, what he wrote, what he stood for, they are much more vindicated today than they were during his time. और एक आखिरी चीज, इस बार सचमुच का आखिरी, एक काउंटर फैक्चुअल दौर चल पड़ा है इस मुल्क में। काउंटर फैक्चुअल एक इतिहास की ऐसी धारा होती है जब हम कल्पना करते हैं कि सीजर ने अगर रूबिकॉन रिवर क्रॉस न किया होता तो क्या होता, या फलाना या गांधी अगर चंपारण नहीं गए होते तो क्या होता, या लेनिन ऐसा ना हुआ था कि लीडर होते तो क्या होता। तो ये काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, ये हिस्टोग्राफी का एक ट्रेंड है। ये इतिहासकार अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस अच्छा नहीं कर सकते। तो ये जो आप एक प्रवृत्ति देख रहे हैं, नेहरू बनाम पटेल, पटेल बनाम नेहरू, नेहरू बनाम सुभाष, सुभाष बनाम नेहरू, गांधी बनाम अम्बेडकर, अम्बेडकर बनाम गांधी, गांधी बनाम नेहरू, नेहरू बनाम, ये सारी चीजें आज की डेट में काउंटर फैक्चुअल नैरेटिव, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि गांधी से सबसे बड़ा विवाद अम्बेडकर का विलेज कम्युनिटी को लेकर था, और आज हम समझ रहे हैं कि अम्बेडकर स्टैंड्स विंडिकेटेड व्हाट ही स्पोक अबाउट विलेज कम्युनिटीज एज सीटेड अनॉट, ही स्टैंड्स विंडिकेटेड। लेकिन हम आपको सवाल जरूर करें, अगर आज अम्बेडकर होते
तो जिस तरह से उनकी जन्मतिथि मनाई जा रही है, अंबेडकर क्या कहे, अंबेडकर का पक्ष क्या हो? अगर अंबेडकर जिंदा होते तो रोहित वेमुला वाले प्रश्न पर क्या बोलते? अगर अंबेडकर होते तो जेएनयू वाले प्रश्न पर क्या बोलते? क्योंकि उन्होंने तो कास्ट को ही एंटी नेशनल माना कि जो मुल्क कास्ट के साथ कंफर्टेबल है वो मुल्क कभी भी अपनी तरक्की, अपनी बढ़ोतरी को तैयार नहीं हो सकता। ये एक आखिर में अगर अंबेडकर होते तो कहते कि ये जो रोहित का my birth is a fatal accident, that Rohit is not alone. There are millions and millions of lives in this country whose life is a fatal accident. They feel emptiness. It's just that we don't listen to those lives. Thank you so much. Thank you so much.